کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا، میری نسلوں کے رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالیاں اور عزتیں اور بیٹے اور نعمتیں اور زندگی کی خیریں میری نسلوں کے انشاءاللہ کام آئیں گی، اور میری نسلوں کو یہ نقش مالا مال برکتوں کے ساتھ کر جائے گا جو شخص اس کو قبول کرا لے گا۔ اور قبولیت کے لیے پہلے توبہ، پھر گڑ گڑانا باوضو، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار، یہ قبولیت کے رازوں میں سے راز ہے۔ اور فائدے آپ نے کچھ لوگوں سے سنے ہیں، بہت دنیا اس کے فائدے پا چکی ہے۔ 625 بار ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نسلوں کے کام آیا ہے اور آئے گا۔ پچھلی دفعہ کس کس نے لکھا تھا؟ ماشاءاللہ بہت سارے بیٹھے۔ کوئی ایک بندہ ایسا بتائیں جس کو 625 دفعہ سورۃ فاتحہ کی انوکھے کمالات ملے ہوں، مختصر بات۔ جی کہنے لگے ماتھے پہ رکھ کے سورۃ فاتحہ، اس نقش کو میں ماتھے پہ رکھتا ہوں، سورۃ فاتحہ دم کرتا ہوں، کوئی بیماری ہو کسی قسم کی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جی کہتے یہ تعویذ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، گھر کا کوئی بندہ ہے جس کو سر درد ہو، تعویذ سر پہ رکھ کے 41 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں، درد سر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بتائیں کیا پایا؟ سخی بن کے بتائیں، میں سخی بن کے دیتا ہوں، آپ سخی بن کے بتاتے ہیں۔ جی کہتے ہیں میں نے پچھلے سال تعویذ لکھا، پرس میں رکھا، اللہ غیب سے ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، کبھی پرس خالی نہیں رہا۔ جی جی گاڑی میں رکھا ہے، پہلے ایکسیڈنٹ بہت ہوتے تھے، اللہ کے فضل سے حفاظت رہی۔ جی تو اور کیا چاہیے؟ کہتا کبھی میرا کام ہی نہیں رکا۔ جی کہ ہر ٹائم میرے جیب میں ہے، بڑی مصیبتیں ہیں، سب ٹل جاتی ہیں۔ بھائی بات سنو کہ میں اپنے کوئی دوائی اور سودا نہیں بیچ رہا، جو لوگوں کو کہہ رہا ہوں تمہیں کیا ملا، تمہیں کیا ملا، میں اللہ کے عرش کے نظام کے سودے بیچ رہا ہوں، یہ عرشی سودے بیچ رہا ہوں، یہ اپنی دوائیوں کے فائدے آپ سے نہیں پوچھ رہا۔ جی کہتے یہ تعویذ اپنی ہو گھر والوں کی ہو، کسی کو کوئی تکلیف ہو، 19 بار بسم اللہ پڑھ کے رکھ کے دم کرتا ہوں، ٹھیک میرے دل نے اللہ ہو کیتا، میں رکھ توکل دھو کیتا۔ ہاں اور بتائیں جی بولے بھائی، سخی بنے، اتنا سارے ہاتھ کھڑے ہوئے تھے۔ جادو جنات سے حفاظت ہوتی ہے، بولے بھائی، کہنے لگا ہاں واہ۔ اس جوان نے 2 باتیں بتائیں، بڑے کام کی بتائیں۔ کہتے گناہوں اور میرے درمیان دیوار آ جاتی ہے، اور اگلی بات اس جوان نے بتائی کہ پہلے میں رزق کے پیچھے تھا، اب رزق میرے پیچھے ہے۔ ماشاءاللہ جی گھر سے جادو اور جنات جب سے یہ نقش آیا ختم ہو گئے، یہ نقش لازوال ہے، یہ نقش بے مثال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ آخری ایک اور بتا دے بس، اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ کون بتائے گا؟ جی کہتے کام نہ بھی ہو، جیب سے پیسے ختم نہیں ہوئے اور غیب سے مدد ہوتی ہے۔ میرے ہاتھ سے شیشے کا جگ گرا،
بے ساختہ میرے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نکلا، کسی کو یقین نہیں آئے گا وہ نہیں ٹوٹا۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے نا، یہ 625 بار لکھنا ہے، ذرا غور سے سنیے گا، اب میں اس کو بتا رہا ہوں۔ تو 625 بار لکھنا ہے، باوضو ہو کے لکھنا ہے، غور سے میری بات پہ توجہ، اور باوضو ہو کے لکھنا ہے اور توجہ سے لکھنا ہے، اور اگر سیاہی کالی ہو، بلیک انک ہو، کیونکہ کالی سیاہی کو میرے آقا کی کملی سے نسبت ہے، کعبہ کے غلاف سے نسبت ہے، اور بلال کے خالوں سے نسبت ہے، اور میرے مدینے والے کی زلفوں سے نسبت ہے۔ ہاں، کعبہ کے غلاف سے، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا۔ ایک بندہ تھا، اس کو لوگ کالا کالا کہتے تھے، کہنے لگا جب تجھے کالا کہا کرے نا تو یہ شعر پڑھا کر، یہ زلف کالی، یہ خال کالے، نبی کے گھر کا خدا کے گھر کا غلاف کالا، نبی کا بانگا بلال کالا۔ کالی سیاہی ہو ٹھیک ہے، ورنہ جو سیاہی ہو، اور دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں یہ لکھیں گے، دنیا کے جس کونے میں جو حضرات بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے۔ اچھا، اگر ہمارے نیٹ والے جو ہمارا یہ فارم ہے اس میں ڈال دیں، نیٹ پہ ڈال دیں تو لوگ اس کا پرنٹ لے لیں گے اور لکھیں گے، اول آخر درود پاک پڑھیں گے 3 بار لکھنے سے پہلے۔ اب جو میں کیفیت بتا رہا ہوں نا لکھنے کی، اس کو ذرا غور سے سنیے، توجہ سے دیکھیں۔ یہ جو تعویذ ہوتا ہے نا، تعویذ یہ الفاظ ہی ہوتے ہیں، جب وہ الفاظ مٹ جاتے ہیں پھر وہی کوڑا کاغذ ہی ہوتا ہے۔ پر تعویذ لکھتے ہوئے جو تعویذ لکھ رہا اس کی کیفیات بھی ساتھ منتقل ہوتی ہیں۔ وہ غصے والی ہیں، وہ جذبات والی ہیں، وہ وجدان والی ہیں، وہ کیفیات والی ہیں، وہ کیفیات ساری منتقل تعویذ کے لفظوں کے اندر ہوتی ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کو کیسے بتاؤں، لیکن یہ حقیقت ہے، میں بہت بڑی حقیقت بتا رہا ہوں، بہت بڑی حقیقت ہے۔ کیا کوئی ضربی تعویذ ہے جس پہ ضرب لگانی ہے، اس پہ اندر کے جذبے اور کیفیات و وجدان منتقل ہوتے۔ تو تعویذ لکھتے ہوئے پہلے تو اللہ سے اپنے سابقہ گناہوں کی ہم توبہ کریں گے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو اپنے نام کی برکت ہمیں نہ دے اور ہمارا لکھا ہمارے منہ پہ نہ مار دے۔ ہاں، میں کہ بعض اوقات انسان کی عبادت، ذکر اور تسبیح اس کے منہ پہ مارتی جاتی ہے۔ یا اللہ میرے جس گناہ کی وجہ سے یا اللہ تو میرے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا، اے اللہ میں توبہ کر کے پہلے اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں۔ ایک اللہ والے تھے، وہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے، تو کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز میرے منہ پہ نہ مارتی جائے، میرے منہ پہ نہ مارتی جائے۔ تو ایک تو توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اگر توبہ کے 2 نفل پڑھ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھیں تو عمل پھر بھی کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اپنے مقصد کا تصور کرتے ہوئے ایسے تعویذ لکھنا ہے جیسے اللہ کو اپلیکیشن اور درخواست دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا کوئی تجھ سے کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ مولا ساری دنیا کی دولت، مال مل جائے، شہرت مل جائے، آخر انجام تو میرا گمنامی قبر ہے۔ اے سخی آقا تو نہ ملا تو سب ملا، مزہ نہ آیا، اور اپنے حبیب کا کملی والے کا عشق دے دے، محمد دے دے، اور محمد، آل محمد، اصحاب محمد، اولیاء محمد کا تعلق اور قرب اور اتباع اور غلامی دے دے۔ سب سے پہلے اللہ سے یہ مانگے، پھر اپنی دنیا، مال، چیزیں، مجبوریاں، ضروریات، بے اولادی، غم، مشکلیں، حالات، مسائل، زندگی، یہ ساری کائنات مانگیں، اور لکھتے ہوئے مانگیں 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 مانگیں، گڑ گڑائیں، بھکاری بنے، محتاج بنے، سائل بنے، منگتے بنے۔ یہ اس انداز سے بیٹھ کے آج بھی، یعنی اس ہفتے میں جب لکھیں گے آپ تو لکھ کے لائیں گے
और उस दिन जो लिखना चाहेंगे इस कैफियत के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे। अल्लामा शातिबी एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपना कसीदा लिखा, 70 तवाफ किए, हर तवाफ पे अल्लाह से उसकी कबूलियत मांगी। आज दुनिया में सारी दुनिया की बहुत लाखों किताबें लिखी गई, मिट गई, पर उनका वो लिखा हुआ कसीदा नहीं मिटा कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में उसको कबूल करा लिया था। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता साहब पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब कश्फुल महजूब लिखी, जो हमारे तस्बीह खाने में हर माह पढ़ाई जाती है और हम पढ़ते हैं, लिखी, पर इसको अल्लाह से कबूल कराया। आज 1000 साल के करीब कितने लोगों ने किताबें लिखी होंगी, कितना, कोई समझ नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, सब मिट गए, पर आज भी कश्फुल महजूब वैसी की वैसी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेगी। उसकी वजह अर्शों पे इसकी कबूलियत हुई है। एक है अमल, एक है उसकी कबूलियत। अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो, अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो। अमल तो हो गया पर कबूलियत ना हुई, इसका उससे कहीं ज्यादा फिक्र हो, इसका उससे कहीं ज्यादा गम हो। या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और यकीन जानिए अगर कबूल हो गया ना, ये एक नक्श 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लिखा हुआ, एक दफा लिखा हुआ, मेरी नस्लों के काम आएगा, मेरी नस्लों के रिस्क, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और इज्जतें और बेटे और नेमतें और जिंदगी की खैरें मेरी नस्लों के इंशाअल्लाह काम आएंगी। और मेरी नस्लों को यह नक्श माला माल बरकतों के साथ कर जाएगा जो शख्स इसको कबूल करा लेगा। और कबूलियत के लिए पहले तौबा, फिर गिड़गिड़ाना, बावुजू अपने गुनाहों से तौबा, इस्तिगफार, यह कबूलियत के राजों में से राज है। और फायदे आपने कुछ लोगों से सुने हैं, बहुत दुनिया इसके फायदे पा चुकी है। जिसकी जेब में ये हो, इसको प्लास्टिक में लेमिनेशन करा ले। अब तो पहले लोग इसको चमड़े में बंद कराते थे, अब तो प्लास्टिक लेमिनेशन है, पानी भी लगे तो कुछ ना हो और खराब भी ना हो। और आप चाहें एक अपने लिए लिख दें, एक अपने किसी अजीज के लिए, अपने घर वालों के लिए, उस बंदे के लिए जो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए लिख लें, सदका जारिया कर लें। मेरा कमली वाला, मेरा मदीने वाले खुद सखी हैं और मेरा अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है, तो सखी भी बन जाए, खुद भी अपने लिए भी लिख ले, और ऐसा हो कि किसी और के लिए भी सदका जारिया कर ले और किसी और के लिए भी लिख ले, तो कैसा कमाल रहेगा और कैसी बेमिसाल रहेगा। आखिरी चीज ये है, एक बात याद रखिएगा, 2 चीजें खास तौर पे कर लीजिएगा। जब भी इसको लेमिनेशन कराएं, बंद करें, इस पे खुशबू जरूर लगा लीजिएगा। खुशबू, इत्र की खुशबू, कोई इत्र हो जो आपको मयस्सर है, परफ्यूम ना हो, इत्र हो, कोई भी, इसको खुशबू जरूर लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा खुशबू। खुशबू से चीज की कीमत बढ़ जाती है और अल्लाह के यहां उसका मकाम वकार बढ़ जाता है और अल्लाह के यहां उसकी कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत बढ़ जाती है खुशबू से। अपनी बरकत वाली थैली को भी खुशबू लगाया करें और चाहे तो अपनी जानमाज को भी हल्की खुशबू लगा दिया करें। एक तो यह है खुशबू, और दूसरा इसका अदब हो, और तीसरा जो सबसे अहम है, इसका यकीन हो। पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपको एक यकीन बता रहा हूं, मेरी तरफ देखें जरा, देखें। एक बंदे के साथ हाथ में बंदूक है और परिंदा भी सामने बैठा है, ठीक, और अगर इसका हाथ कांप रहा, ऐसे ऐसे लरज रहा, हाथ में लर्जा है, कांपना है, क्या निशाना सही लगेगा? नहीं लगेगा। परिंदा भी सामने है, बंदूक भी लोड है, भरी हुई है, और इसका हाथ इसके कांप रहे। इसी तरह बेयकीनी किसी भी अल्लाह वाले के फैज को खा जाती,
मुर्शिद भी बनाया पर बेयकीन रहा। कभी 19, कभी 20, कभी बाहर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी अंदर का वसवसा। हमेशा मुर्शिद को तोलता ही रहा, इम्तिहान ही लेता रहा। बाद लोग बेचारे नादान ऐसे होते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान ही लेते रहते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान लेते रहते हैं। कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं। वो बेचारे सारी उम्र ऐसे रुलते ही रहते हैं, बेचारे परेशान ही रहते हैं। असल चीज है यकीन, जो सारी कायनात में है वो कुरान में है, जो सारे कुरान में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। असल चीज यकीन है। जितना इस नक्श पे, जितना इस लिखने का यकीन होगा, और इसके कोई हवाले मांगे तो इसके हवाले हमने दिए थे, आज भी नेट पे इसके हवाले पूरी किताबों के साथ मौजूद हैं, पूरी किताबों के साथ मौजूद हैं, पूरी किताबों के साथ हवाले मौजूद हैं कि मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, खुद साख्ता नहीं बनाता, मैं बताता हूं। अल्लाह वालों ने जो कुरान, हदीस, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अकाबिर जिन्होंने बताए, मैं बताता हूं। तो आखिरी चीज, जो अहम तरीन चीज है, वो क्या है? यकीन। और यकीन की दुनिया कि मेरे पास ये इतनी अहम चीज है, अल्लाह की रहमत मेरे साथ, अल्लाह की मदद मेरे साथ, अल्लाह का फजल मेरे साथ, हिफाजत मेरे साथ, किफायत मेरे साथ, किफालत मेरे साथ और रहमत मेरे साथ, और अल्लाह की नजर में इंशाअल्लाह मेरा खास इंतखाब है कि अल्लाह ने मुझे ये अमल लिखने के काबिल बनाया और ये अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई, नेमत अता फरमाई। असल चीज यकीन है। जिसको यकीन मिल गया उसको कायनात की सारी तासीर मिल गई, और जो यकीन से बेचारा लुट गया, फिर वह बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ चलता फिरता भी रहेगा, बेयकीन रहेगा, और बेयकीन कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह मुझे आपको इसका यकीन अता फरमाए। अल्लाह मुझे आपको तस्बीह खाने का यकीन दे, तस्बीह खाने से मिलने वाले अमाल का यकीन दे। अल्लाह मुझे आपको तस्बीह खाने का सच्चा फैजान अता फरमाए और सच्ची बरकत अता फरमाए। मेरा तो तजर्बा है, जो तस्बीह खाने में सच्चा जज्बा लेके आया है, तलब लेके आया है, तड़प लेके आया है, भिकारी बन के आया है, मोहताज बन के आया है, मेरा रब बड़ा गैरत वाला है, सखी और करीम है। मेरे रब ने उसे अल्हम्दुलिल्लाह दिया है और दिया है, और माला माल हुआ है। दुनिया के माल में भी, आखिरत में भी, रूहानियत में भी, बरकत में भी, रिस्क में भी, सेहत में भी, और मुश्किलात के हल में भी उसे अता हुआ है, उसे मिला है कि मेरे पास ये इतनी अहम चीज है, अल्लाह की रहमत मेरे साथ, अल्लाह की मदद मेरे साथ, अल्लाह का फजल मेरे साथ, हिफाजत मेरे साथ, किफायत मेरे साथ, किफालत मेरे साथ और रहमत मेरे साथ, और अल्लाह की नजर में इंशाअल्लाह मेरा खास इंतखाब है कि अल्लाह ने मुझे ये अमल लिखने के काबिल बनाया और ये अल्लाह ने मुझे नेमत अता फरमाई। ये एक नक्श 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लिखा हुआ, एक दफा लिखा हुआ, मेरी नस्लों के काम आएगा। मेरी नस्लों का रिस्क, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और इज्जतें और बेटे और नेमतें और जिंदगी की खैरें मेरी नस्लों के इंशाअल्लाह काम आएंगी, और मेरी नस्लों को यह नक्श माला माल बरकतों के साथ कर जाएगा। जो शख्स इसको कबूल करा लेगा, और कबूलियत के लिए पहले तौबा, फिर गिड़गिड़ाना, बावुजू अपने गुनाहों से तौबा, इस्तिग़फ़ार, यह कबूलियत के राजों में से राज है। और फायदे आपने कुछ लोगों से सुने हैं, बहुत दुनिया इसके फायदे पा चुकी है। 625 बार हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो नस्लों के काम आया है और आएगा। पिछली दफा किस किसने लिखा था? माशाअल्लाह, बहुत सारे बैठे। कोई एक बंदा ऐसा बताएं जिसको 625 दफा सूरत फातिहा की अनोखे कमालात मिले हों, मुख्तसर बात जी।
कहने लगे माथे पे रख के सूरत फातिहा, उस नक्श को मैं माथे पे रखता हूं, सूरत फातिहा दम करता हूं, कोई बीमारी हो किसी किस्म की ठीक हो जाता है। जी कहते ये तावीज रख के 41 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, घर का कोई बंदा है जिसको सर दर्द हो, तावीज सर पे रख के 41 दफा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता हूं, दर्द सर खत्म हो जाता। और बताएं क्या पाया, सखी बन के बताएं, मैं सखी बन के देता हूं, आप सखी बन के बताते हैं। जी कहते हैं मैंने पिछले साल तावीज लिखा, पर्स में रखा, अल्लाह गैब से सारी जरूरतें पूरी करता है, कभी पर्स खाली नहीं रहा। जी जी गाड़ी में रखा है, पहले एक्सीडेंट बहुत होते थे, अल्लाह के फजल से हिफाजत रही। जी बाबू तो और क्या बाबू, और क्या चाहिए? कहते कभी मेरा काम ही नहीं रुका। जी कह रहे हर टाइम मेरे जेब में है, बड़ी मुसीबतें हैं, सब टल जाती हैं। भाई बात सुनो कि मैं आपने कोई दवाई और सौदा नहीं बेच रहा, जो लोगों को कह रहा हूं तुम्हें क्या मिला, तुम्हें क्या मिला। मैं अल्लाह के अर्श के निजाम के सौदे बेच रहा हूं, ये अर्शी सौदे बेच रहा हूं, ये अपनी दवाइयों के फायदे आपसे नहीं पूछ रहा। जी कहते ये तावीज अपनी हो घर वालों की हो, किसी को कोई तकलीफ हो, 19 बार बिस्मिल्लाह पढ़ के रख के दम करता हूं, ठीक मेरे दिल ने अल्लाह कीता, मैं रख तवक्कल धू कीता। हाँ और बताएं जी, बोले भाई सखी बने, इतना सारे हाथ खड़े हुए थे, जादू जिन्नात से हिफाजत होती है। बोले भाई कहने लगा हाँ वाह, इस जवान ने 2 बातें बताई, बड़े काम की बताई। कहते गुनाहों और मेरे दरमियान दीवार आ जाती है। और अगली बात इस जवान ने बताई कि पहले मैं रिस्क के पीछे था, अब रिस्क मेरे पीछे। माशाअल्लाह जी, घर से जादू और जिन्नात जब से ये नक्श आया खत्म हो गए। ये नक्श लाजवाल है, ये नक्श बेमिसाल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। आखिरी एक और बता दे बस, उसके बाद फिर मैं अपने मौजू पे आता हूं। कौन बताएगा? जी कहते काम ना भी हो, जेब से पैसे खत्म नहीं हुए और गैब से मदद होती है। तो मेरे हाथ से शीशे का जग गिरा, बेसाख्ता मेरे मुंह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निकला, किसी को यकीन नहीं आएगा वो नहीं टूटा। ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का अमल है ना, ये 625 बार लिखना है। जरा गौर से सुनिएगा, अब मैं इसको बता रहा हूं। तो 625 बार लिखना है, बावजू होकर लिखना है, गौर से मेरी बात पे तवज्जो, और बावजू होकर लिखना है और तवज्जो से लिखना है। और अगर स्याही काली हो, ब्लैक इंक हो, क्योंकि काली स्याही को मेरे आका की कमली से निस्बत है, काबा के गिलाफ से निस्बत है, और बिलाल के खालों से निस्बत है, और मेरे मदीने वाले की जुल्फों से निस्बत है। हाँ, काबा के गिलाफ से, ये जुल्फ काली, ये खाल काले, खुदा के घर का गिलाफ काला, नबी का बांगा बिलाल काला। एक बंदा था, उसको लोग काला काला कहते थे। कहने लगा जब तुझे काला कहा करे ना तो ये शेर पढ़ा कर, ये जुल्फ काली, ये खाल काले, नबी के घर का खुदा के घर का गिलाफ काला, नबी का बांगा बिलाल काला। काली स्याही हो ठीक है, वरना जो स्याही हो। और दुनिया के जिस कोने में जो हजरात बैठे हैं ये लिखेंगे, दुनिया के जिस कोने में जो हजरात बैठे हैं वो लिखेंगे। अच्छा, अगर हमारे नेट वाले जो हमारा ये फॉर्म है इसको इसमें डाल दें, नेट पे डाल दें, डाल दिया तो लोग इसका प्रिंट ले लेंगे और लिखेंगे। अव्वल आखिर दरूद पाक पढ़ेंगे 3 बार लिखने से पहले।
अब जो मैं कैफियत बता रहा हूं ना लिखने की, उसको जरा गौर से सुनिए, तवज्जो से देखें। ये जो तावीज होते हैं ना, तावीज ये अल्फाज ही होते हैं। जब वो अल्फाज मिट जाते हैं फिर वही कोरा कागज ही होता है। पर तावीज लिखते हुए जो तावीज लिख रहा, उसकी कैफियत भी साथ मुंतकिल होती हैं। वो गुस्से वाली हैं, वो जज्बात वाली हैं, वो विजदान वाली हैं, वो कैफियत वाली हैं। वो कैफियत सारी मुंतकिल तावीज के लफ्जों के अंदर होती है। मैं इसका तर्जमा आपको कैसे बताऊं, लेकिन यह हकीकत है। मैं बहुत बड़ी हकीकत बता रहा हूं, बहुत बड़ी हकीकत है। क्या कोई ज़रबी तावीज है जिस पे ज़रब लगानी है, उस पे अंदर के जज्बे और कैफियत विजदान मुंतकिल होते। तो तावीज लिखते हुए पहले तो अल्लाह से अपने साबिक़ा गुनाहों की हम तौबा करेंगे। या अल्लाह, ऐसा ना हो कि हमारे गुनाहों की वजह से तो अपने नाम की बरकत हमें ना दे और हमारा लिखा हमारे मुंह पे ना मार दे। हां, के बाज़ औक़ात इंसान की इबादत, जिक्र और तस्बीह उसके मुंह पे मारती जाती है। या अल्लाह, मेरे जिस गुनाह की वजह से या अल्लाह तू मेरे इस अमल को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह मैं तौबा करके पहले उस गुनाह से तौबा करता हूं। एक अल्लाह वाले थे, वो हर नमाज के बाद अपने दोनों हाथ ऐसे मुंह पे रख लेते थे। तो किसी ने पूछा, हजरत क्यों? फरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि ये नमाज मेरे मुंह पे ना मारती जाए, मेरे मुंह पे ना मारती जाए। तो एक तो तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे। अगर तौबा के 2 नफिल पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना भी पढ़ें तो अमल फिर भी कर सकते हैं। और दूसरा, अपने मकसद का तसव्वुर करते हुए ऐसे तावीज लिखना है जैसे अल्लाह को एप्लीकेशन और दरखास्त दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मौला कोई तुझसे क्या, कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूं। मौला सारी दुनिया की दौलत, माल मिल जाए, शोहरत मिल जाए, आखिर अंजाम तो मेरा गुमनामी कब्र है। ऐसा ही आका, तू ना मिला तो सब मिला, मजा ना आया, और अपने हबीब का, कमली वाले का इश्क दे दे, मोहम्मद दे दे, और मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद, औलियाए मोहम्मद का ताल्लुक और कुर्ब और इत्तिबा और गुलामी दे दे। सबसे पहले अल्लाह से ये मांगे, फिर अपनी दुनिया, माल, चीजें, मजबूरियां, जरूरियात, बेऔलादी, गम, मुश्किलें, हालात, मसाइल, जिंदगी, ये सारी कायनात मांगे। और लिखते हुए मांगे 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 मांगे, गिड़गिड़ाएं, भिखारी बने, मोहताज बने, साइल बने, मंगते बने। ये इस अंदाज से बैठ के आज भी, यानी इस हफ्ते में जब लिखेंगे आप तो लिख के लाएंगे, और उस दिन जो लिखना चाहेंगे इस कैफियत के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे, इस दर्द के साथ लिखेंगे। अल्लामा शातिबी एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपना कसीदा लिखा, 70 तवाफ किए, हर तवाफ पे अल्लाह से उसकी कबूलियत मांगी। आज दुनिया में सारी दुनिया की बहुत लाखों किताबें लिखी गई, मिट गई, पर उनका वो लिखा हुआ कसीदा नहीं मिटा कि उन्होंने अल्लाह की बारगाह में उसको कबूल करा लिया था। हजरत पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत दाता साहब पीर अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब कश्फुल महजूब लिखी, जो हमारे तस्बीह खाने में हर माह पढ़ाई जाती है और हम पढ़ते हैं, लिखी, पर इसको अल्लाह से कबूल कराया। आज 1000 साल के करीब कितने लोगों ने किताबें लिखी होंगी, कितना, कोई समझ नहीं आया, कोई नजर नहीं आया, सब मिट गए, पर आज भी कश्फुल महजूब वैसी की वैसी मौजूद है और इंशाअल्लाह रहेगी। उसकी वजह अर्शों पे इसकी कबूलियत हुई है। एक है अमल, एक है उसकी कबूलियत। अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो, अमल से ज्यादा उसकी कबूलियत का फिक्र हो। अमल तो हो गया पर कबूलियत ना हुई, इसका उससे कहीं ज्यादा फिक्र हो, इसका उससे कहीं ज्यादा गम हो। या अल्लाह इसको कबूल फरमा ले, और यकीन जानिए अगर कबूल हो गया ना, ये एक नक्श 625 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का लिखा हुआ,
एक दफा लिखा हुआ मेरी नस्लों के काम आएगा। मेरी नस्लों का रिस्क, बरकत, सेहत, खुशियां, खुशहालियां और इज्जतें और बेटे और नेमतें और जिंदगी की खैरें मेरी नस्लों के इंशाअल्लाह काम आएंगी। और मेरी नस्लों को यह नक्श माला माल बरकतों के साथ कर जाएगा। जो शख्स इसको कबूल करा लेगा, और कबूलियत के लिए पहले तौबा, फिर गिड़गिड़ाना, बावुजू अपने गुनाहों से तौबा इस्तिगफार, यह कबूलियत के राजों में से राज है। और फायदे आपने कुछ लोगों से सुने हैं, बहुत दुनिया इसके फायदे पा चुकी है। जिसकी जेब में ये हो, इसको प्लास्टिक में लेमिनेशन करा ले। अब तो पहले लोग इसको चमड़े में बंद कराते थे, अब तो प्लास्टिक लेमिनेशन है। पानी भी लगे तो कुछ ना हो और खराब भी ना हो। और आप चाहें एक अपने लिए लिख दें, एक अपने किसी अजीज के लिए, अपने घर वालों के लिए, उस बंदे के लिए जो बेचारा पढ़ा हुआ नहीं है, उसके लिए लिख लें, सदका जारिया कर लें। मेरा कमली वाला, मेरा मदीने वाले खुद सखी हैं और मेरा अल्लाह सखी है और सखी को पसंद करता है, तो सखी भी बन जाए, खुद भी अपने लिए भी लिख ले, और ऐसा हो कि किसी और के लिए भी सदका जारिया कर ले और किसी और के लिए भी लिख ले, तो कैसा कमाल रहेगा और कैसी बेमिसाल रहेगा। आखिरी चीज ये है, एक बात याद रखिएगा, दो चीजें खास तौर पे कर लीजिएगा। जब भी इसको लेमिनेशन कराएं, बंद करें, इस पे खुशबू जरूर लगा लीजिएगा। खुशबू, इत्र की खुशबू, कोई इत्र हो जो आपको मयस्सर है, परफ्यूम ना हो, इत्र हो कोई भी, इसको खुशबू जरूर लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा खुशबू। खुशबू से चीज की कीमत बढ़ जाती है और अल्लाह के यहां उसका मकाम वकार बढ़ जाता है, और अल्लाह के यहां उसकी कबूलियत, महबूबियत, मकबूलियत बढ़ जाती है खुशबू से। अपनी बरकत वाली थैली को भी खुशबू लगाया करें, और चाहे तो अपनी जानमाज को भी हल्की खुशबू लगा दिया करें। एक तो यह है खुशबू, और दूसरा इसका अदब हो, और तीसरा जो सबसे अहम है, इसका यकीन हो। पता नहीं होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपको एक यकीन बता रहा हूं, मेरी तरफ देखें जरा, देखें। एक बंदे के साथ हाथ में बंदूक है और परिंदा भी सामने बैठा है, ठीक, और अगर इसका हाथ कांप रहा, ऐसे लरज रहा, हाथ में लर्जा है, कांपना है, क्या निशाना सही लगेगा? नहीं लगेगा। परिंदा भी सामने है, बंदूक भी लोड है, भरी हुई है, और इसका हाथ इसके कांप रहे। इसी तरह बेयकीनी किसी भी अल्लाह वाले के फैज को खा जाती। मुर्शिद भी बनाया पर बेयकीन रहा, कभी 19 कभी 20, कभी बाहर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी उधर की सुनी, कभी अंदर का वसवसा। हमेशा मुर्शिद को तोलता ही रहा, इम्तिहान ही लेता रहा। बाद लोग बेचारे नादान ऐसे होते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान ही लेते रहते हैं, सारी उम्र अपने मुर्शिद के इम्तिहान लेते रहते हैं। कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी मुर्शिद को इस अंदाज से परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं, कभी ऐसे परखते हैं। वो बेचारे सारी उम्र ऐसे रुलते ही रहते हैं, बेचारे परेशान ही रहते हैं। असल चीज है यकीन, जो सारी कायनात में है वो कुरान में है, जो सारे कुरान में है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। असल चीज यकीन है। जितना इस नक्श पे, जितना इस लिखने का यकीन होगा, और इसके कोई हवाले मांगे तो इसके हवाले हमने दिए थे, आज भी नेट पे इसके हवाले पूरी किताबों के साथ मौजूद हैं, पूरी किताबों के साथ मौजूद हैं, पूरी किताबों के साथ हवाले मौजूद हैं कि मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, बताता हूं। मैं वजीफे बनाता नहीं हूं, खुद साख्ता नहीं बनाता, मैं बताता हूं। अल्लाह वालों ने जो कुरान, हदीस, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, अकाबिर जिन्होंने बताए, मैं बताता हूं। तो आखिरी चीज, जो अहम तरीन चीज है, वो क्या है? यकीन। और यकीन की दुनिया
کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی، نعمت عطا فرمائی۔ اصل چیز یقین ہے، جس کو یقین مل گیا اس کو کائنات کی ساری تاثیر مل گئی، اور جو یقین سے بیچارہ لٹ گیا پھر وہ بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ چلتا پھرتا بھی رہے گا، بے یقین رہے گا، اور بے یقین کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کا یقین عطا فرمائے، اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا یقین دے، تسبیح خانے سے ملنے والے اعمال کا یقین دے، اللہ مجھے آپ کو تسبیح خانے کا سچا فیضان عطا فرمائے اور سچی برکت عطا فرمائے۔ میرا تو تجربہ ہے، جو تسبیح خانے میں سچا جذبہ لے کے آیا ہے، طلب لے کے آیا ہے، تڑپ لے کے آیا ہے، بھکاری بن کے آیا ہے، محتاج بن کے آیا ہے، میرا رب بڑا غیرت والا ہے، سخی اور کریم ہے، میرے رب نے اسے الحمدللہ دیا ہے اور دیا ہے، اور مالا مال ہوا ہے، دنیا کے مال میں بھی، آخرت میں بھی، روحانیت میں بھی، برکت میں بھی، رزق میں بھی، صحت میں بھی، اور مشکلات کے حل میں بھی اسے عطا ہوا ہے، اسے ملا ہے کہ میرے پاس یہ اتنی اہم چیز ہے، اللہ کی رحمت میرے ساتھ، اللہ کی مدد میرے ساتھ، اللہ کا فضل میرے ساتھ، حفاظت میرے ساتھ، کفایت میرے ساتھ، کفالت میرے ساتھ، اور رحمت میرے ساتھ، اور اللہ کی نظر میں انشاءاللہ میرا خاص انتخاب ہے کہ اللہ نے مجھے یہ عمل لکھنے کے قابل بنایا، اور یہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی۔ یہ ایک نقش 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لکھا ہوا، ایک دفعہ لکھا ہوا، میری نسلوں کے کام آئے گا، میری نسلوں کے رزق، برکت، صحت، خوشیاں، خوشحالی